हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। Shall we start? हरे कृष्ण। Shall we start? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Okay, so we'll start. Can someone put that 6 Bhagavad Gita chapter 6 37 shloka on the screen? Is it possible for anyone? So that we can recite together. Chapter 6, 37 shloka. If it's not possible, then I will recite my own. Then everyone can follow me. But if it can be put on the screen, it's very nice. Yes, someone has raised a hand. Okay, Vaishnavi, please do so. Okay, thank you so much, Vaishnavi. Can everyone see it? You can enlarge that so that. Yes. So we will recite the shloka together. Arjuna Uvacha. Ayati Shraddha Yaupeta. Yoga Chalita Manasa. Aprapya Yoga Samsiddham. Kam Gatim Krishna Gacchati. So we can recite one more time. Maybe we can recite one more time so everyone can follow. Arjuna Uvacha. Ayate Shraddha Yopeto. Yoga Chalita Manasa. Aprapya Yoga Samsiddhim. Kam Gatim Krishna Gacchati. Yes, anyone can please read the translation. Vaishnavi, maybe you can read the translation. Okay, anyone else? Translation. Arjuna said, "O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who is in the beginning turns to the process of self-realization with faith, but who later deceased due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism?" Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. So now what happens is that now this is the same question that we have now here. Arjuna, don't think that Arjuna is doubting whether he can attain eternal abode of Lord. Arjuna is Nitya Siddha Bhakta. Is Krishna's eternal companion. He was previously. Anyone knows who was Arjuna in his previous life? Anyone? Okay, so Arjuna is yes. Okay, I got it. So Arjuna and Krishna, they were Narayan Rishi. Arjuna was Nar and Krishna was Narayan Rishi. So they were Narayan Rishi in their previous Krishna's previous incarnation and Arjuna in his previous birth. So Arjuna is an eternal company of Lord. It's not that the first time Arjuna has taken part in Krishna's pastimes on this planet. So Arjuna is eternal companion. Now being a Nitya Siddha, Arjuna, are you people comfortable with English, or it should be English or Hindi or Marathi?
You can write on chat box also. So because thumbs up can mean anything. It can be English, Hindi, whatever. English, okay, तेजस, okay, I got it. तो फिर अर्जुन जो है भगवान का नित्य सिद्ध भक्त है. अब वो नित्य सिद्ध भक्त, उसको तो डाउट नहीं है कि मैं बैक टू गॉड जाऊंगा. वो कृष्णा के साथ हमेशा ही एसोसिएट कर रहा है. Now, but the question that Arjuna is asking, that is showing his humility. एक अर्जुना बहुत ही हम्बल होकर पूछ रहे हैं कृष्णा से, कृष्णा अगर क्या होगा, वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी ऑल्सो, ओके, थैंक यू. सो अर्जुना बहुत ही हम्बल होकर पूछ रहे हैं कृष्णा से कि अगर हम भक्ति करते हैं और हमारा भक्ति अगर परिपूर्ण नहीं हो पाया है, इफ यू आर अनेबल टू कंप्लीट आवर भक्ति और इफ यू आर अनेबल टू परफेक्ट आवर भक्ति, देन व्हाट हैपेंस टू अस. कोई कहावत है ना, न माया मिले ना राम, वो वैसी हालत हो जाएगी क्या. अभी हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं पर जपा में रस नहीं आ रहा है. जपा करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हम कृष्णा के साथ बैठे हैं. हर कोई बोलता है होली नेम इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा. हमको तो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है कि भाई हम होली नेम ले रहे हैं, कृष्णा दिख गया, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है ना. कृष्णा आगे हमसे बात कर रहे हैं और फिर इसमें टाइम जाता है. हम प्रवचन सुनते हैं, हम जपा करते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, उस सब में टाइम भी जाता है. तो उसकी वजह से हो सकता है हम भौतिक the material success that we could have achieved, we may be compromising that also. तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ना भक्ति में कुछ कर पाए ना भौतिक जीवन में कुछ पा रहे हैं. neither we are able to achieve perfection in the spiritual life nor in material life. ये तो हम लोगों से भी, हम में से भी बहुतों का ये डाउट हो सकता है. So Arjuna, on behalf of all of us, is asking this question to Arjuna, to Krishna, sorry. What happens to those people who are unable to complete their bhakti in this life? उनका साथ क्या होता है? So now Krishna very beautifully replies, and that is the theme of our today's session. So Krishna says that, Krishna actually multiple times Krishna has said that in Bhagavad Gita. Anyone remembers any verse where Krishna promises that there is no harm done in bhakti? Okay. So Krishna says, Neha Vikrama Nasho Asti Patyeva Na Vidyate. There is no loss or diminution in this endeavor. हाँ, मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता. ना मैं भक्त्या प्रणश्यति. So Krishna has said that ना मैं भक्त्या प्रणश्यति. मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता. तो हम बोलेंगे तो फिर अभिमन्यु कैसे मर गया? ना मैं भक्त्या प्रणश्यति. अभिमन्यु तो कृष्णा का बहुत अच्छा भक्त था. इनफैक्ट भांजा था कृष्णा का. कृष्णा की सिस्टर जो है सुभद्रा, उनका लड़का था और अर्जुन का भी लड़का था. तो उसका नाश कैसे हो गया? हाउ ही डाइड? सो एक्चुअली अगर आप महाभारत पढ़िए, आप में से कितने लोगों ने महाभारत पढ़ी है या सुनिए, देखिए? ओके, सो यस, सो एवरी वन ऑफ योर्स फैमिली. थैंक यू साना, विनिंदा, तेजस, प्रशांत, विवेक, आरती, थैंक यू, ऋतुजा, गीता. ओके, सो गीता टुडे. ओके, ओके, थैंक यू गायत्री एंड एवरीवन एल्स. थैंक यू निशा. सो इस महाभारत में क्या होता है ना कि एक्चुअली कृष्णा से बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं. महाभारत जो फाइट चल रही होती है कि सबको लगने लगता है कि कृष्णा भगवान है, क्योंकि ना उनको हर चीज पता होती है. भीष्म को कैसे मारना है, कर्ण को कैसे मारना है, everything he was knowing and he was doing so perfectly. So everyone starts having this doubt. Even दुर्योधन को डाउट होने लगता है कि कृष्णा क्या सही में भगवान है क्या? अब तक दुर्योधन मान नहीं रहे थे कृष्णा भगवान है. कृष्णा ने जब अपना विराट स्वरूप भी दिखाया था दुर्योधन की सभा में, जब शांतिदूत बन के गए थे, दुर्योधन tried to capture Krishna. So at that time दुर्योधन never believed that Krishna is God. He thought that कुछ magical trick कर रहे हैं कृष्णा. He is just some more than an ordinary person and is doing some magical tricks. He never believed that Krishna is God और वो अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं. He never thought like that. पर जब महाभारत में कृष्णा इस तरीके से एक्ट करने लगते हैं, सो डाउट होने लगता है दुर्योधन को भी कि कहीं कृष्णा सही में भगवान है क्या? उनको सब कुछ कैसे पता होता है? लेकिन जब भी ये बात होती थी कि अगर कृष्णा भगवान है तो फिर अभिमन्यु की डेथ कैसे हो गई? तो फिर दुर्योधन सोचता नहीं, इसका मतलब कृष्णा भगवान नहीं. अगर होते तो अभिमन्यु को बचा लेते थे, राइट? अच्छा, आप में से किसी को कभी डाउट है कि वाई कृष्णा डिडंट सेव अभिमन्यु? ओके, गुड. नो वन ऑफ यू हैड दैट डाउट कि भाई कृष्णा अर्जुन के सारथी थे और कृष्णा अर्जुन को दूर ले जाते हैं बैटलफील्ड में. उसकी वजह से अर्जुन दूर हो जाता है और जब चक्रव्यूह रचा जाता है तो उस टाइम पे अर्जुन वहां नहीं होता है क्योंकि कृष्णा उसको दूर ले गए होते हैं सारथी के तौर पे. और उस चक्रव्यूह में महाराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्लान होता है द्रोणाचार्य का, लेकिन वो चक्रव्यूह को अभिमन्यु तोड़ देता है. वो तोड़ के अंदर चले जाता है, लेकिन वो चक्रव्यूह क्लोज हो जाता है एंड अभिमन्यु अंदर फंस जाता है. एंड देन ही डाइज इन अ वेरी ब्रूटल वे. 7 महारथीस ऑफ Kaurava army, they come together and they kill Abhimanyu in a very tragic way.
So the point remains is that Krishna supposedly didn't save Abhimanyu or supposedly didn't protect Abhimanyu, but that's not the point actually. Krishna had saved Arjuna, Abhimanyu. Now can anyone tell how? Okay. So what happened that before even the battle began, we have to understand कि हमारी जो लाइफ होती है, जो हमारा जो जर्नी है, वो जर्नी केवल एक छोटी सी लाइफ में नहीं होती है. हम इटर्नल सोल है, राइट? So because we are eternal souls, we have many births. In fact, ये जो महाभारत है, महाभारत जब शुरू होती है ना, शुरू मतलब long before, देवताओं के बीच में चर्चा हो रही होती है, और उस चर्चा में जो अभिमन्यु जो उसकी प्रीवियस बर्थ में होता है, he says that I will go and take birth and I will be called as son of Arjuna, as Abhimanyu, but I will live only for 16 years and after that I want to come back to heaven. So it was pre-decided that Abhimanyu was going to die at the age of 16 years and he was going to go back to his heavenly abode where he was coming from. क्योंकि बहुत सारे देवता कृष्णा जब अवतार दिए तो उनके साथ वो देवता भी अवतरित हुए थे, because that's what Krishna had said, asked them, because I'm going to take incarnation on the planet Earth, so all of you also please come down and we have a job to do to kill all the demons there. So Abhimanyu also took birth, and this Abhimanyu, he was fixed that he will go at the age of 16. So Krishna just fulfilled that. So it's not, and Abhimanyu became so famous, he achieved eternal fame actually. So that way Krishna never forsake his devotees. Krishna always protects his devotee. So here Krishna is saying, even if you are unable to perfect your bhakti remains eternal. Please remember that, ma'am. Bhakti is eternal. हमारे जो बाकी जितने भी वो होते हैं प्रयास होते हैं इस भौतिक जगत में, वो सारे प्रयास जो होते हैं वो सारे प्रयास बहुत ही टेम्पररी होते हैं, उनका रिजल्ट बहुत लिमिटेड होता है. तो भक्ति ऐसा नहीं, भक्ति इटर्नल होती है. आपने एक माला जप कर लिया ना, चाहे आपका ये शरीर छूट जाए, चाहे आप कितने करोड़ों साल चले जाए, ये एक माला ऐड रहेगी आपके भक्ति में. लेकिन भौतिक में ऐसा नहीं है. मेडिकल वर्ल्ड में आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, MBA बन जाओ, जैसे ही लाइफ खत्म होगी आप वापस ABCD से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 चालू करोगे. आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा सारा, क्योंकि आप सब कुछ भूल चुके होंगे. लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है. भक्ति में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सुना है, किया है, वो इंटरनली आपके अकाउंट में ऐड होता है. नेक्स्ट लाइफ में अगर हम ऐड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अगर मान लो लेटर से आपने 80.1% भक्ति कर ली है, तो आप 80.2% से आगे बढ़ोगे नेक्स्ट लाइफ में. 0 से नहीं बढ़ोगे. लेकिन भौतिक जगत में आपने जो कुछ भी पढ़ा लिखा, जो कुछ भी किया, वो 0 से ही ऐड होगा, 0 से ही आगे होगा. हर बच्चा ABCD सीखता है, हर बच्चा 1 2 3 सीखता है, राइट? पर भक्ति में ऐसा नहीं होता है. भक्ति में आपने जो जैसे कैन एनीवन शेयर एनी एग्जांपल फ्रॉम स्क्रिप्चर्स व्हिच प्रूव्स दिस? ओके, सो एग्जांपल आता है गजेंद्र कथा का, गजेंद्र मोक्ष. गजेंद्र he was previously king in his previous life. Yes, Bharat Maharaj, thank you Tejas. Bharat Maharaj also the same. He became deer, then he became Jad Bharat, but he was remembering his past lives. He was remembering everything related to his bhakti actually. So that's the beauty of bhakti. It is never lost. It is never diminished. It is never what we say forgotten, neither by Krishna nor by the soul. आप जितनी भक्ति करोगे उतनी भक्ति आपके हृदय में रहेगी. हाँ, ये है कि जब हम भक्ति करने के बाद कोई पाप कर देते हैं तो भक्ति कुछ टाइम के लिए छूट जाती है, क्योंकि कृष्ण उसको ढक देते हैं. तो ये हो सकता है कि हाँ, भक्ति करते जाएं और साथ में पाप भी करते जाएं, तो हमारी भक्ति उतना खिल नहीं पाएगी, उतना विकसित नहीं हो पाएगी. बट एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू रिमेन, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. कई लोग सोचते हैं ना कि भाई हमने भक्ति तो कर ली, लेकिन बहुत गलत काम भी हो गया, मेरी भक्ति तो पूरी डूब गई. भक्ति कभी नहीं डूब सकती, इटर्नल है. जितना आप करोगे वो हमेशा रहेगा आपके अकाउंट में. ना कृष्ण अपने वाले ना आपको भूलने देंगे. ऐसे बहुत सारे पास टाइम्स है जिसमें डिवोटीज लोगों ने भक्ति की, फिर उन्होंने सोचा छोड़ो यार, अपनी बस का नहीं, छोड़ देते हैं. आप सोचोगे छोड़ देंगे, लेकिन कृष्ण आपको नहीं छोड़ेंगे. इट्स सो लविंग, सो लविंग. एक बार आपने मुंह से भी बोल दिया कृष्णा मैं आपका हूँ, कृष्ण आपको नहीं छोड़ेंगे. एक बार भी बोल दिया आपने, भले ऐसे ही बोल दिया, कैजुअली, कृष्ण आई बिलोंग्स टू यू. यस, अजामिल पास्ट टाइम्स, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी नाइस, थैंक यू साना. सो अजामिल पास्ट टाइम्स, अजामिल उसने शुरू में भक्ति की, शुरू की उसके 20 years ऑफ लाइफ एंड सो बाद में उसने छोड़ दिया, बट कृष्णा नेवर फॉरगॉट दैट. फिर कृष्णा ने इंस्पायर किया उसको, है ना, थ्रू द सेजेस दैट ही नेम्स हिज सन एज नारायण. कृष्णा की इंस्पिरेशन से
उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा और नारायण 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 बोलते बोलते उसका हार्ट प्यूरिफाई होता चले गया। एंड देन इन द एंड जब यमदूत आए तो कृष्णा ने तुरंत विष्णुदूत भेज दिया एंड दे डिडंट अलाउ यमदूत टू टेक हिम अवे। सो कृष्णा नेवर फॉरगेट्स। तो हम जब भक्ति करते हैं तो आप ये मत सोचो कि वो कौन देख रहा है कौन सुन रहा है। कृष्णा सब देख रहा है सब सुन रहा है और वो कभी नहीं भूलने वाला है। इट्स वेरी लविंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। इस भक्त वत्सल, इस भावग्राही। आप कैसे भक्ति करते हो, कितना स्किल से करते हो, कृष्णा उसको कोई इंटरेस्ट से नहीं देखते, लेकिन आप किस भाव से करते हो, कितने प्यार से करते हो, कृष्णा को उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो हमको किसी भी भक्ति इसलिए इंडिपेंडेंट बोली जाती है, स्वराट बोली जाती है भक्ति, स्वराट। कोई बोलेगा प्रभु जी मेरे को अच्छे से भजन नहीं आता क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गाइए भजन, जैसा भी आपका गला हो, जैसा भी आपका सुर हो, अगर आप प्यार से कर रहे हैं कृष्णा उसको अप्रिशिएट करेंगे। कैन एनीवन गिव एनी एग्जांपल्स फ्रॉम स्क्रिप्चर्स? थैंक यू गायत्री। Where Krishna says that, or Krishna or his incarnation said that they're just interested in the love of devotee and nothing more than that. कोई एग्जाम्पल है सर स्क्रिप्चर्स में? शबरी, राइट? ऐसे छोटे बेर खिला रही है कृष्णा को, कृष्णा इज एक्सेप्टिंग इट। थैंक यू विवेक, गायत्री, ललित। कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड राम इज एक्सेप्टिंग इट। थैंक यू वृंदा, बाला साहब। सो कृष्णा एक्सेप्ट्स दैट। और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कुब्जा। कुब्जा ने जब चंदन का लेप लगाया, कुब्जा वाज अ वेरी ओल्ड डिफॉर्म्ड वुमन, बट कृष्णा एक्सेप्टेड इट, है ना? सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, लाइक विदुर रानी, वाइफ ऑफ विदुर। जब अर्जुन ने, आपने सॉन्ग ये सुना है ना, दुर्योधन का भोग न खायो, थैंक यू विवेक, दुर्योधन का भोग न खायो, रुखो साग विदुर घर खायो, ये सुना आपने? थैंक यू निशा, अनुसिया, आरती, वृंदा, ललित, गायत्री, थैंक यू। सो दैट सॉन्ग इज देयर, दुर्योधन का भोग न खायो। दुर्योधन invited Krishna, Krishna please come and have the sumptuous feast with me. Krishna denied. Krishna said no, I can't have food with you because you don't love me, you're not my devotee. Simple. Krishna just rejected Duryodhan. वो दुर्योधन को रिजेक्ट करके बाद कृष्ण कहाँ गए? विदुर के घर गए। थैंक यू आरती। एंड वहां पे जब विदुर के घर पे गए तो विदुर की जो वाइफ थी, विदुर was not there at that moment, but Vidur's wife, she was a great devotee of Lord Krishna and she invited Krishna। और वो कृष्णा को जब खिला रहे थे ना, एनीवन नोस क्या खिलाया उसने कृष्णा को? केले के छिलके। हाँ, उसका इंटेंशन छिलके खिलाने का नहीं था, थैंक यू विवेक, पर वो केले खिलाना चाहती थी, पर उसके आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, थैंक यू निशा, तेजस, उसके आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, उसको बेचारे को देख ही नहीं रहा था। एक्सटेसिव है वो, एकदम एक्सटेसिव थी कृष्णा को देख के, बिकॉज़ शी लव्स कृष्णा सो मच। उसकी आंखों से आंसू इतने बह, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसमें वो क्या कर रही है कि केला तो फेंक रही है और केले के छिलके कृष्णा को देने, कृष्णा खा रहे हैं। इसलिए तो कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। पत्र पुष्प फल कुछ भी दे दो, बस प्यार से दे लो। हाउ लविंग कृष्णा इज, हाउ लविंग, सो ब्यूटीफुल कृष्णा। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। थैंक यू एवरीवन। कंदर्प कोटि कमनीय, सो ब्यूटीफुल, बट इज नॉट ब्यूटीफुल ओनली बाय हिज लुक्स, he can enchant even Cupid। आपको पता ना, एक बार कामदेव कृष्णा को मोहित करने गए थे because he was very proud of his powers। इस वर्ल्ड में तो कामदेव की बहुत चलती है। No one can deny that I am free from lust। No one can deny unless you have become a pure soul, completely pure soul। ये है कि वो there will be varying degrees of lust in everyone। किसमें कितना कम है, किसमें ज्यादा, वो अलग चीज है, but no one can deny that anyone can conquer Kamdev। When Kamdev shoots his arrow, everyone just goes flat, right? So Kamdev was very proud, so he went and he thought that I will conquer Krishna also today। That was his mistake। But when he went and when he saw the form of Krishna, Lalita Tribhanga Krishna, Tribhanga is threefold bending form of Shyam Sundar, when he saw that, he just fainted, गिर गए नीचे। That's the beauty of Krishna। That's the beauty of Krishna। But that's not the only thing। Krishna is very beautiful from inside also। Krishna, everything is beautiful about Krishna। You have heard the song Adharam Madhuram Madhurashtam? Yes, thank you Lalit, Vrinda, Vivek, Bhati, Gita, Sana. Yes, thank you Anushya and everyone else, Vaishnavi and Gayatri। So Krishna is beautiful. He's beautiful in everything. He's beautiful in his heart also। Krishna never forgets his devotees, never he lets his devotee forget him। एक बार हमने बोलते हैं कृष्णा हम आपके हैं, Krishna will make sure that we come back to him। He will always be there for us। Just see, हमारा कोई भी इस लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड है क्या जिसको आप बस एक बार बोलो कि आई लव यू,
या फिर आई वांट टू बी विद यू, और उसके बाद में आप उसके साथ कुछ भी करो वो आपको छोड़ेगा नहीं। करके देखो, आप 10 अच्छी चीजें कर लो किसी एक के साथ और एक बुरी चीज कर दो, तुरंत लोग छोड़ देते हैं, तुरंत लोग गिराने लग जाते हैं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अरे तुम्हारे साथ अच्छा किया उसको भूल गए। पर एक गलत चीज आप कर दो तो लोग उसको याद रखते हैं। पर कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। इवन इफ यू डू मिलियंस, एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा कोई पाप नहीं कर सकते जिससे कृष्ण आपको प्यार करना छोड़ दें। कैन यू इमेजिन? You can't perform any sin which can make Krishna forget you. Never, ever. हमारे हार्ट में ऐसा परमात्मा है. He will always remain like that, and He will always keep guiding us, especially when He becomes His devotee. So Krishna says that my devotee never perishes. नेहा विक्रमो नाशोस्ते. Spiritual progress जो होती है ना हमारी, वो कभी भी lost नहीं होती है. At the same time, ये वर्ष की एक ब्यूटी क्या है ना कि अर्जुन हमको ये बता रहे हैं, इस आश्वस्त कर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ के कि अगर आपका फॉल डाउन हो भी गया फॉर वॉट एवर रीजन, डिसहार्टन मत हो, क्योंकि कृष्ण आपको छोड़ने वाले नहीं। कृष्ण इज नॉट गोइंग टू लीव। इज अ वेरी लविंग गॉड, इज अ वेरी मर्सीफुल गॉड, यू नो, इज वेरी मर्सीफुल गॉड। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा सिंधु इज ओशन ऑफ मर्सी, राइट? सो कृष्ण इज नॉट गोइंग टू लेट अस wrote in this material world. हमने एक बार नाम जप कर लिया, हमने एक बार कृष्णा को बोल दिया, कृष्णा आई लव यू, कृष्णा आई वांट टू बी विद यू, कृष्णा विल नॉट लीव अस बिहाइंड। अभी हमारा इतना अगर लविंग कृष्णा है तो हमारा क्यों फॉल डाउन हो जाता है? जस्ट वी विल टच ऑन दैट पार्ट। वी कांट डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट, बट वी कैन जस्ट टच, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द माइंड, राइट? दैट्स बिकॉज ऑफ आवर माइंड, बिकॉज आवर माइंड हैज सो मेनी बैड संस्कार फ्रॉम सो मेनी लास्ट लाइव्स, सो मेनी बैड संस्कारास। थैंक यू वैष्णव। So we have so many bad संस्कार, उस bad संस्कारास की वजह से क्या होता है कि हमारा माइंड हमको घसीटता है, लिटरली घसीटता है, पुल करता है वो सब चीज करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते हैं, पर माइंड घसीटता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली अर्जुना भी पूछते हैं भगवद गीता में, ओ कृष्णा व्हाट इज दैट व्हिच फोर्सेस वन टू परफॉर्म sin? एंड कृष्णा रिप्लाइज, इट इज लस्ट ओनली, ओ अर्जुना। लस्ट मींस एंजॉयिंग टेंडेंसी, नॉट ओनली अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स, बट इट्स द एंजॉयिंग टेंडेंसी। एंजॉयिंग टेंडेंसी सेपरेट फ्रॉम कृष्णा, तो वो आपको घसीटता है। कृष्ण अर्जुन से ऐसे बोलते था, चंचलम ही मना कृष्णा, है ना, चंचल है हमारा, कभी यहाँ कभी वहां। अभी भक्ति का भाव जागृत हो रहा है और कुछ भौतिक जगत में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमारा अटैचमेंट बढ़ जाएगा। सो बहुत चंचल है मन, तो इसकी वजह से हमारा फॉल डाउन होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू कंट्रोल दिस माइंड, बट हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रोल दिस माइंड? वी आर गोइंग टू कंट्रोल दिस माइंड बाय होली नेम, बाय द एसोसिएशन। होली नेम is not different than Krishna। तो जितना हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं दिन भर में, कभी भी, ऑब्वियसली माला पे करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुलसी की माला जो होती है भगवान को बहुत प्रिय है, तुलसी, तो उस पे करेंगे तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। लेकिन तुलसी की माला ना भी हो, कहीं पे भी आप फ्री बैठे हो, मन में जप करिए हरे कृष्णा, इट्स सो ब्यूटीफुल। इट डजंट रिक्वायर एनी लॉस, इट डजंट रिक्वायर एनी रूल्स रेगुलेशंस, कहीं पे भी नाम जप कर सकते हैं, है ना। कोई इसके कोई क्या बोलेंगे, कोई टाइम का, प्लेस का कोई इनहिबिशंस नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कभी भी जप करिए, एंड देन वी विल रिमेन इन कांटेक्ट विद कृष्ण, वी विल बी स्ट्रेंथनिंग आवरसेल्व्स। देयर इज नो लॉस इन स्पिरिचुअल लाइफ, सो व्हाटएवर जपा you will do, it will remain forever with you, forever, right? There is nothing in this world besides holy name actually which can remain forever with us. So chant as many rounds as you can, chant as many names as you can. अभी तो वैसे भी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, 3 साल में एक बार आता है, it comes once in 3 years। पुरुषोत्तम मंथ जो है ना, ये भगवान का खुद का ब्लेस्ड किया हुआ मंथ है। अगर बाकी के जो मंथ होते हैं ना, वो सब मंथ में एक देवी उसका क्या होती है, प्रीडोमिनेटिंग डिटी होती है। जैसे कार्तिक मंथ में राधा रानी है ना, ऐसे हर मंथ के रहते हैं। लेकिन ये पुरुषोत्तम मंथ एक अकेला ऐसा मंथ है जिसको अधिक मास या मल मास भी बोलते हैं, जिसमें कृष्णा ने खुद ने अपना नाम दिया हुआ है इसको, पुरुषोत्तम, दैट इज द नेम ऑफ कृष्णा। So Krishna has given this name। इस मंथ में आप जितनी भी भक्ति करोगे वो मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा फ्रूटफुल होती है, बिकॉज कृष्णा हैज ब्लेस्ड दिस मंथ। ये बेनेडिक्शन है इस मंथ को। तो इस मंथ में आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सुबह प्रवचन को आ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, इट्स जस्ट आइसिंग ऑन द केक, स्पेशली इन दिस मंथ। So please continue doing so, and holy name जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस को ट्रैक पे रखेगा। So please chant as many rounds as you can, always remain in the association। क्योंकि जब हम एसोसिएशन के बाहर जाते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि हम बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। एक्चुअली वन थिंग वी शुड रिमेंबर, कि एज डिवोटीज ना, फॉल डाउन से ज्यादा हमको खतरा पता है किस चीज का होना चाहिए?
Can anyone tell? More than fall down actually. Fall down is always the biggest thing. But more than fall down, what we should be more careful of as devotees, as practicing sadhakas. Aparad, okay, thank you Tejas, very nice answer. Aparad, Vaishnava aparad in particular. Also we should be very careful about complacency. Complacency. अरे मैं तो बहुत भक्ति कर लिया, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हो गया, हो गई, है ना? मेरा तो सब हो गया. ये complacency नहीं होना चाहिए. अगर complacency नहीं है ना, तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा fall down भी होगा ना, obviously नहीं होना चाहिए. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अहंकार, वेरी नाइस निशा. तो हमारा अगर फॉल डाउन भी होता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? बिकॉज कृष्णा इज परम पवित्र, और जब हम अपवित्र हो जाते हैं तो हम कृष्णा से थोड़ी दूरी बना लेते हैं. कृष्णा चाहते हैं हमारे पास आना, लेकिन हम खुद से दूरी बना लेते हैं. इसलिए हमने कुछ पाप नहीं करना चाहिए, कुछ अपवित्र जो है इम्पायस एक्टिविटीज वो नहीं करनी चाहिए. 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए. तो जब हम ये करते हैं तो हम परम पवित्र कृष्णा के ज्यादा क्लोजर आ जाते हैं, और वो फील भी करते हैं, महसूस भी करते हैं. Right? So it's not that Krishna will leave us if we do anything wrong, but it is just that we will not be able to perceive His love for us. हमारा नुकसान है. तो इसके लिए हमको ये तो नहीं सोचना चाहिए कि मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी अगर मैं कुछ गलत करूंगा या करूंगी. भक्ति तो नष्ट नहीं होती है. That's the beauty of भक्ति. पर हाँ ये है कि भक्ति ढक जाएगी, हम कृष्णा से टेम्परेरी थोड़ा टाइम के लिए दूर हो जाएंगे, हम महसूस नहीं कर पाएंगे इतने लविंग गॉड के लव को. So to what we say, to experience that love for Krishna, we should remain away from sinful activities, and we should chant as many rounds as possible. We should chant as many names as possible. We should remain in the association. We should read nice books, so that हमारा mind जो है वो purify होता रहे. Avoid criticizing devotees. Wonderful, Aarti. Yeah, you people are so intelligent. I'm proud of all of you. Feeling really honored and what we say fortunate to be with all of you. Thank you, Vivek, Tejas, Aarti, Vaishnavi, Aarti, Nisha, Gayatri, Sana, everyone. Thank you. Yes, so anyone has any doubts? Any questions? Any comments? I would appreciate that if you can share something or ask anything, or you can share some comment which you have liked. कुछ अच्छा लगा आपको लेक्चर के बीच में, so you can share that also. Okay, besides giving the thumbs up, because that way I will understand कि okay, I am able to convey something to my audience, which convey कर पाया मैं. Yes, chat. You want to share anything? Okay, thank you, Vivek, Gayatri. I don't know whether I'm unable to see the chat or what. Okay, got it. Okay, thank you so much. So then we will meet again maybe after a week or so, something like that. Thank you so much. Hare Krishna. Prabhupada. Jai Hare Krishna. You explained very nicely. Thank you, Nisha. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.